السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شبیر حنفی پھر سے آپ کی خدمت میں۔ آج ہم بات کریں گے غیر مقلد عالم زبیر علی زئی کے بارے میں۔ وہ کتنا بڑا جھوٹا تھا، بات بات پہ وہ جھوٹ کہتا تھا۔ پچھلے ایک ویڈیو میں بھی میں نے نمونہ کے طور پہ اس کا ایک جھوٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ میں زبیر علی زئی کا جھوٹ آپ کی خدمت میں کیوں پیش کرنے جا رہا ہوں؟ کیونکہ جو فرقہ اہل حدیث کے لونڈے اور لفنگے اگر یہ آج کوئی بھی بات کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے اسی زبیر علی زئی کی کتابیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت اسی غیر مقلد زبیر علی زئی کا مواد ہے، اور اسی مواد سے یہ دن رات فیس بک پہ بکتے رہتے ہیں۔ ساتھیو، اس وقت میرے ہاتھ میں زبیر علی زئی کی کتاب موطا امام مالک۔ اس موطا امام مالک کا اس نے شرح بھی کیا، ترجمہ بھی کیا اور تخریج بھی کی، اور یہ کتاب اعتقاد پبلشنگ ہاؤس دلی والوں نے چھاپی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 104 پہ زبیر علی زئی کیا کہتا ہے، آپ ہی سنیے۔ 20 تراویح پر اجماع کا دعویٰ باطل ہے۔ 20 تراویح پر اجماع کا دعویٰ باطل ہے، یعنی جو احناف یا باقی 4 مسالک کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پہ اجماع ہے، یہ کہتا ہے اس کا دعویٰ کرنا باطل ہے۔ دیکھیے دلیل کیا دیتا ہے، دلیل پہ غور کیجیے۔ امام شافعی نے فرمایا اگر رکعتیں کم اور قیام لمبا ہو تو بہتر ہے، اور یہ مجھے پسند ہے۔ مختصر قیام اللیل للمروزی، صفحہ نمبر 202 203۔ دیکھیے اس سے اس اجماع کو یہ باطل قرار دے رہا ہے، کس کے قول سے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے۔ اگر رکعتیں کم اور قیام لمبا ہو، اس میں کہاں ذکر ہے کہ 20 کا دعویٰ کرنا باطل ہے؟ دلیل پہ غور کیجیے نا۔ اگر رکعتیں کم، وہ تو 8 سے بھی کم بھی ہوں گے نا، یہ کہاں لکھا ہے 20 سے کم یا 8؟ وہ 8 سے بھی کم ہوں گے، آپ تو وہ پڑھتے ہی نہیں، یہ تمہارے خلاف بھی ہے، یہ دلیل ہے۔ چلو، کتاب کا نام دیا ہے علامہ مروزی کی قیام اللیل۔ یہ کسی دوسرے عالم کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، یہ ثابت ہی نہیں یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ دیکھیے میں آپ کو امام شافعی ہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی 20 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ دیکھیے یہ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے 20 رکعت تراویح امت کا اجماعی فیصلہ، اور محترم کندی صاحب کے رسالہ کا علمی و تحقیقی جائزہ۔ یہ کتاب لکھی ہے مفتی عمر امین الہی صاحب نے، یہ دارالعلوم الہیہ کے استاذ ہے۔ یہ کتاب جو ان کا ڈاکٹر عبداللطیف الکندی المدنی الپدنی الپتہ نہیں کیا یہ اس نے ایک رسالہ لکھا ہے
8 तरावी पे और 20 रकात का इनकार किया है, उसी का रद्द किया है मुफ्ती उमर अमीन इलाही साहब ने। जवाबी ऐसा लिखा है कि क़यामत तक फ़िरक़ा अहले हदीस टोला इस किताब का जवाब नहीं दे सकेंगे। इस किताब के सफ़ा नंबर 61, देखिए 61 पे सफ़ा नंबर 61, क्योंकि जो किताबुल उम है ये इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने खुद लिखी है, क्योंकि वो किताब मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं इस किताब से हवाला दे रहा हूँ। देखिए इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह क्या फरमा रहे हैं और ज़ुबैर अली ज़ई साहब क्या दावा कर रहे हैं। यानी मुझे 20 रकात तरावी पढ़ना इसलिए पसंद है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से यही मनकूल है और अहले मक्का का यही अमल है। नेज़ वो भी 3 रकात वितर पढ़ते हैं। देखिए इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे 20 तरावी इसलिए पसंद है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यही मनकूल है और अहले मक्का का यही अमल है। अली ज़ई साहब किसी दूसरे आलिम की किताब से हवाला पेश कर रहा है, उसी से इजमा को बातिल करार दे रहा है, लेकिन इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने जो खुद किताब लिखी है किताबुल उम, उसी का जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 142 ये इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने खुद लिखी है और खुद की लिखी हुई किताब पे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं और किसी दूसरे आलिम की किताब से अली ज़ई साहब दावा कर रहे हैं जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसकी कोई सनद ही नहीं है, उससे इजमा को बातिल करार दे रहे हैं। देखिए कितना बड़ा झूठ कह रहा है ज़ुबैर अली ज़ई साहब। देखिए झूठ नंबर 2, यही किताब मोता इमाम मालिक, जिसका तर्जुमा भी किया है अली ज़ई साहब ने, शरह भी किया और तखरीज भी की, इसी किताब के सफ़ा नंबर 287 देखिए 287 सफ़ा नंबर 287, इस पे क्या कह रहे हैं ज़ुबैर अली ज़ई साहब। देखिए दूसरा झूठ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नफल नमाज में एक सलाम के साथ 4 इकट्ठी रकातें पढ़ना सही सनद से साबित नहीं है। यानी रात की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात इकट्ठी एक सलाम से नहीं पढ़ी। ये कौन दावा कर रहा है? यही ज़ुबैर अली ज़ई साहब, जो बात बात पे झूठ कह रहा है। देखिए यही किताब मोता इमाम मालिक, इसके सफ़ा नंबर 493, देखिए सफ़ा नंबर 493, इसी किताब के सफ़ा नंबर 493 पे एक हदीस नकल की है इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने। देखिए अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि रमज़ान में नमाज कैसी थी, तो उन्होंने फरमाया रमज़ान हो या गैर रमज़ान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, 4 रकातें पढ़ते थे, मगर उनकी खूबसूरती और लंबाई के बारे में न पूछो, 4 रकातें पढ़ते थे। देखिए अली जै साहब फरमा रहे हैं 4 रकात पढ़ना एक सलाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। देखिए बुखारी की हदीस है। और फिर क्या फरमा रहे हैं आगे, फिर 4 पढ़ते थे, मगर उनकी खूबसूरती और तवालत के बारे में न पूछो, फिर 3 रकातें पढ़ते थे, यानी वितर। देखिए इसमें आ रहा है रमज़ान हो या गैर रमज़ान, यानी पूरे साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकातें पढ़ते थे। यानी ये तहज्जुद की नमाज का जिक्र हो रहा है। ये फिरके अहले हदीस टोला इसी हदीस से 11 रकात तरावी साबित कर रहे हैं। देखिए गैर रमज़ान में कौन सी तरावी होती है, ये तो पूरा साल, इसमें रमज़ान हो या गैर रमज़ान, रमज़ान तो एक ही महीना होता है, बाकी 11 महीने वो तो गैर रमज़ान है। देखिए इसमें 4 रकातों का जिक्र है, देखिए सब दिखता है। और 3 रकातें वितर, 3 रकातें वितर भी साबित हो रहा है एक सलाम से। देखिए 2 पहले नहीं लिखा है इस पे, पहले 2 पढ़ते थे, फिर 1 रकात ये वितर पढ़ते थे, देखिए फिर 3 रकातें पढ़ते थे, देखिए फिर 3 रकातें, ये एक सलाम से हैं जिसके मुनकिर हैं। देखिए पूरे साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकातें वितर पढ़ते थे, ये तोला जो है ये 1 रकात पढ़ते हैं। देखिए ये हदीस किस किताब में है, देखिए इसी अली ज़ाई ने तहरीज किया है, सनदहु सही, तखरीज मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुत्तफ़क़ुन अलैह उस हदीस को कहते हैं जो बुखारी में भी हो और मुस्लिम में भी। ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। और अली ज़ाई साहब फरमा रहे हैं 4 रकातें एक सलाम से पढ़ना किसी हदीस में साबित नहीं है। देखिए बुखारी शरीफ में दिन रात बुखारी का रट लगाते हैं और बुखारी में उनको हदीस भी नज़र नहीं आता है। देखिए इनकी दिमागी कैफियत, ये जो ज़ुबैर अली ज़ै साहब, ये असल में दिमागी मरीज़ था, इसको पता भी नहीं है। इसी हदीस से ये 11 रकात तरावी साबित कर रहे हैं। और इसी हदीस में ये भी साबित हो रहा है 4 रकातें पढ़ना, ये तो 2 पढ़ते हैं, ये 1 रकात वितर पढ़ते हैं। इसमें तो 4 रकातों का जिक्र है। देखिए इसमें और भी साबित हो रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप वितर से पहले सो जाते हैं। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर से पहले सो जाते थे, लेकिन ये सोते ही नहीं, ये तो ये तरावी के साथ ही वितर भी पढ़ते हैं। देखिए कहाँ ये इसमें मुआफ़क़त करते हो इस हदीस के साथ, आप तो इसकी मुखालफत करते हो, इसी से आप 11 रकातें साबित करते हो। इसमें तो 3 रकात वितर का भी 3 रकातें वितर भी साबित हो रहे हैं और 4 रकातें भी आप तो 2 पढ़ते हैं। अल्लाह ताला समझना नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।